آپ دیکھ رہے ہیں لاہور نیوز میں ہوئی ربنا سٹی صاحب جان چکے ہیں۔ آغاز میں بات کریں گے موسم کی، تو آپ بتائیں کہ لاہور کا موسم پھر ہوا بے ایمان۔ شہر میں دوپہر کو ہونے والی موسلا دھار بارش سے موسم خوشگوار، جبکہ دھوپ نکلتے ہی ہبس بڑھ گئی۔ آندھی اور بارش کے باعث مختلف علاقوں میں سائن بورڈ، گھر کی چھت اور شادی ہال کی دیوار گرنے سے ایک شخص جاں بحق ہوا اور 2 بچیاں سمیت 9 افراد بھی زخمی ہو گئے۔ سیزن کے باعث موسم کا مزاج مسلسل بدلتا رہا۔ دوپہر کو موسلادھار بارش سے خوشگوار ہونے والا موسم دھوپ نکلتے ہی ہبس زدہ ہو گیا۔ شہر میں سب سے زیادہ بارش پانی والا تیلاب میں 89 ملی میٹر ہوئی۔ ایئرپورٹ پر 89، لکشمی چوک میں 72، گلبرگ میں 49 اور اپر مال 29 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ شہر کا کم از کم درجہ حرارت 27 جبکہ زیادہ سے زیادہ 35 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ شہر کے نشیبی علاقے زیر آب، سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک کا نظام درہم برہم۔ بارش سے لیسکو کے 100 سے زائد فیڈر سٹرپ کر گئے۔ کئی علاقوں میں بجلی گھنٹوں بند۔ آندھی کے باعث چائنا اسکیم میں سائن بورڈ گرنے سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ سبزی منڈی کے قریب پولیس چوکی کی دیوار گر گئی، تاہم عملہ محفوظ رہا۔ بادامی باغ کے علاقے میں گھر کی چھت گرنے سے 4 افراد ملبے تلے آ کر زخمی ہو گئے۔ بادامی باغ میں ہی عثمان چوک پر شادی ہال کی دیوار 7 والے گھر پر گرنے سے 2 بچیوں سمیت 5 افراد زخمی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 5 اگست سے بارشوں کا ایک اور سلسلہ پنجاب میں داخل ہوگا، جس سے لاہور سمیت کئی شہروں میں موسلا دھار بارشوں کا امکان ہے۔ اور ناصر، مانسون بارشوں کے چھٹے اسپیل بعد پی ڈی اے میں پنجاب نے الرٹ جاری کر دیا۔ مانسون سسٹم کے ساتھ کل سے مغربی ہوائیں بھی شامل ہو جائیں گی۔ ترجمان پی ڈی اے کے مطابق 4 سے 7 اگست کے دوران پنجاب کے بیشتر اضلاع میں مانسون بارشوں کی پیشگوئی ہے۔ لاہور، شیخوپورہ، سیالکوٹ، ناروال، ساہیوال، جھنگ، ٹوبہ ٹیکسنگ، اوکاڑہ اور دیگر شہروں میں بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ مری، کلیاگ، راولپنڈی اور پنجاب کے شمال مشرقی اضلاع میں فلیش فلڈنگ کا خدشہ بھی ہے۔ ڈی جی پی ڈی اے میں عرفان ندی کاٹھے کے صوبہ بھر کے کمشنرز اور ڈیپٹی کمشنرز کو الرٹ رہنے کی ہدایت ہے۔ ڈی جی پی ڈی اے میں کا اس متعلق کہنا ہے کہ لاہور، راولپنڈی، گوجرانوالہ اور سیالکوٹ میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے۔ ایمرجنسی کنٹرول رومز میں اسٹاف کو الرٹ جاری رکھا سیاح موسمی صورتحال کے پیش نظر محتاط رہیں اور غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ موسمی برسات میں وبائی امراض میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ شہر میں ڈائریا، ٹائیفائڈ، ڈینگی اور ملیریا کے مشتبہ مریض سامنے آنے لگے ہیں۔ سرکاری ہسپتالوں میں ایک ہفتے کے دوران 7,000 سے زائد مریض رپورٹ ہو چکے ہیں۔ محمد بلال کی رپورٹ دیکھیں۔ موسم برسات میں وبائی امراض کا پھیلاؤ بڑھنے لگا۔ ڈائریا، ٹائیفائڈ، ڈینگی اور ملیریا کے مشتبہ مریض سامنے آنے لگے۔ شہر کے 5 بڑے سرکاری ہسپتالوں میں ایک ہفتے کے دوران ڈائریا اور ٹائیفائڈ کے 7,000 سے زائد مریض رپورٹ ہو چکے ہیں۔ میو ہسپتال میں 1,700، سروسز ہسپتال میں 1,500 سے زائد مریض آئے۔ جناح ہسپتال میں 1,300، جنرل ہسپتال اور گنگا رام ہسپتال میں 1,000 مریض رپورٹ ہوئے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈینگی اور ملیریا سے بچاؤ کے لیے SOPs پر عمل کریں، اپنے ارد گرد صفائی اور نکاسی آب یقینی بنائیں۔ مونسون میں ڈائریا کا پھیلاؤ عام ہے، پانی اور خوراک کا خاص خیال رکھیں۔ کیمرامین بلال کے ساتھ محمد بلال، لاہور نیوز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اسپیشل ایجوکیشن کے بچوں کے لیے بڑا اعلان۔ پنجاب کے اسپیشل بچوں کو دودھ اور بسکٹ فراہم کیے جائیں گے۔ اس پروجیکٹ سے بچوں کی صحت اور سیکھنے کی صلاحیتوں میں اضافہ بھی ہوگا۔ اسپیشل ایجوکیشن محمد خان رانجھا کے مطابق پروجیکٹ کے تحت استحکام کا شکار ہے اور روزانہ جاری ہونے والی سرکاری ریلیز پر بھی عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ عازمین حج حجاز مقدس جانے کے لیے ہو جائیں تیار۔ حج واجبات کی وصولی کا آغاز پیر 4 اگست سے ہوگا، جبکہ رجسٹرڈ افراد سے واجبات کی پہلی قسط 9 اگست تک وصول کی جائے گی۔ نئے عازمین حج نشستیں دستیاب ہونے پر 11 تا 16 اگست کو بھی اپلائی کر سکیں گے۔ نشستیں مکمل ہوتے ہی حج واجبات کی وصولی روک دی جائے گی۔ حج پیکیج 2026 11.5 تا 12.5 لاکھ کے درمیان ہوگا۔ حج کی قربانی دم شکر واجبات میں شامل ہے اور ترجمان مذہبی امور کے مطابق واجبات کی دوسری قسط 1 نومبر سے وصول کی جائے گی۔ دوبارہ حج کرنے اور عمرے کی بلائی حد کی پابندی ختم کر دی گئی ہے۔ 1 مارچ 2014 کے بعد پیدا ہونے والے بچے حج کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے۔
इमिग्रेशन निज़ाम में बेहतरी के लिए अमली इक़दाम शुरू किए गए हैं। लाहौर एयरपोर्ट पर गैर मुल्की मुसाफिरों की सहूलत के लिए नए इमिग्रेशन काउंटर्स कायम कर दिए गए हैं। नए काउंटर से गैर मुल्की मुसाफिरों के इमिग्रेशन क्लियरेंस में गैर ज़रूरी ताख़ीर का सामना करना पड़ेगा। नए काउंटर्स के क़याम से गैर मुल्की सयाहों, सरमायाकारों और कारोबारी वफूद को सहूलत मिलेगी। इस इक़दाम का मकसद पाकिस्तान में सयाहत, तिजारत और गैर मुल्की सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है। वतन वापस आने वाले पाकिस्तानियों के लिए भी इमिग्रेशन का अमल मज़ीद तेज़ और आसान हो जाएगा। तर्जुमान FIA के मुताबिक इक़दाम का मकसद इमिग्रेशन सर्विसेज को बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक बेहतर बनाना है। और आपको बताएं कि इस्लामाबाद एक्सप्रेस हादसे के 18 घंटे बाद काला शिकागो के मुकाम पर ट्रैक बहाल कर दिया गया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हादसे में 30 मुसाफिर जख्मी हुए हैं। वज़ीर रेलवेज़ ने फेडरल इंस्पेक्टर ऑफ रेलवेज़ की सरबराही में आला सतह की तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी है। ट्रैक बहाली के बाद 2 मुसाफिर ट्रेनों जाफर एक्सप्रेस और तेज़गाम को ट्रैक से गुजारा गया। ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाली इस्लामाबाद एक्सप्रेस को काला शाकाकू के करीब हादसा पेश आया था। ट्रेन की 5 कोचेज ट्रैक से उतरकर उलट गईं, जबकि 4 कोचेज डीरेल हुईं, जिससे 30 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हुए। हादसे के बाइस ट्रैक 900 फीट तक टूट गया और ट्रेनों को मुतबादिल रूट से मंजिल की जानिब रवाना किया गया। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट ज्वाइंट सर्टिफिकेट के मुताबिक हादसा पटरी टूटने के बाइस पेश आया। रेलवेज की जानिब से 18 घंटे बाद ट्रैक बहाल कर दिया गया। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने हादसे का नोटिस लेते हुए फेडरल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ऑफ रेलवेज आमिर निसार की सरबराही में आला सतह की इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है, जो 7 रोज में वजीर रेलवेज को रिपोर्ट पेश करेगी। लाहौर से पिंडी ट्रैक पर मुसाफिर ट्रेन जाफर एक्सप्रेस को गुजारा गया। जाफर एक्सप्रेस ट्रैक से 10 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से गुजरी। पिंडी से कराची जाने वाली मुसाफिर ट्रेन तेजगाम भी हादसाती ट्रैक से गुजर गई। तेजगाम ट्रेन की रफ्तार भी 10 किलोमीटर फी घंटा रही। रेलवे इंतजामिया की जानिब से 1 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक पर 1 माह के लिए कॉशन लगा दिया गया है। तर्जुमान रेलवे का कहना है कि काला शाह काकू से ट्रैक बहाल करके फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया गया है। इस्लामाबाद एक्सप्रेस समेत दीगर ट्रेनें मामूल के मुताबिक रवाना होंगी, जबकि तमाम जख्मियों को तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। फाहद अमीन, लाहौर न्यूज़। लाहौर की सड़कों पर ट्रैफिक का निज़ाम बहरान का शिकार है। सड़कों पर जमा होने वाला बारिश और सीवरेज का पानी भी ट्रैफिक के बहाव में रुकावट बनने लगा है। टीपा निवासों को शहर के पोर्टिंग एरिया पर फौरी निकासी के लिए इक़दाम की सिफारिश कर दी। नाकिस निजाम से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। शहर की अहम सड़कों पर जगह जगह पानी जमा होने लगा। वसा हुकाम की गफलत के बायस गटर उबलने से सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। टीपा की हालिया ट्रैफिक सर्वे रिपोर्ट ने वासा की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। रिपोर्ट के मुताबिक शहर के दर्जनों मकामात पर सेवर ओवरफ्लो और पाउंडिंग पॉइंट्स मौजूद हैं। कलमा चौक, इचरा और करतबा चौक, जैन मंदिर, कचहरी, आजादी और न्यासी चौक पर वाटर पाउंडिंग वबाले जान बन गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि वासा ने वाटर पाउंडिंग के तदारुक के लिए फौरी इकदाम न किए तो ट्रैफिक निजाम मफलूज हो सकता है। चीफ इंजीनियर टीपा ने बाकायदा तौर पर MD वासा को मरासला लिखकर नाकासियाब और सीवरेज मसाइल के फौरी हल की इस्तदा की है। ताहल वासा की जानिब से कोई खातिरख्वाह इकदाम सामने नहीं आ सका। और नाज में काबू होने लगा है। शहरी रोजमर्रा अशिया महंगे दामों खरीदने पर मजबूर है। मार्केट में शिमला मिर्च 250, भिंडी 230, करेले 200 रुपये किलो में फरोख्त हो रहे हैं। पपीता 550, सेब और आड़ू 380, जबकि आम चौसा 300 रुपये फी किलो में दस्तयाब है। तो आपको बता रहे हैं महंगाई का जिन में काबू है और शहरी रोजमर्रा अशिया महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। मार्केट में शिमला मिर्च 250, भिंडी 230, जबकि करेले 200 रुपये फी किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। पपीता 550, सेब और आड़ू 380, आम चौसा 300 रुपये फी किलो में दस्तयाब है। आपको बता रहे हैं महंगाई का जिन में काबू है। शहरी रोजमर्रा अशिया महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। चीनी बहरान पर मुकम्मल काबू न पाया जा सका, जबकि मार्केट में चीनी मामूल के मुताबिक दस्तयाब नहीं है। बेशतर परचून दुकानों पर चीनी 173 रुपये फी किलो के बोर्ड्स भी अवेजा है और बाज़ दुकानों पर चीनी तहाल 200 रुपये फी किलो में मिल रही हैं।
अभी मामूल पर नहीं आ सकी। बाज दुकानों पर चीनी 173 रुपए फी किलो मिल रही है, ताहम कुछ दुकानदार चीनी बदस्तूर 200 रुपए फी किलो बेच रहे हैं। की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। खरीदार कहते हैं अगर चीनी मिलती है तो वो 200 रुपए फी किलो तक है। दुकानदारों का कहना है कि मार्केट से चीनी नहीं मिल रही, अगर मिलती है तो महंगी खरीद कर सस्ती बेच रहे हैं ताकि मुकदमात से बच सकें। हफ्ता 2 हफ्ता हो गया, चीनी तो बाजार में समझो है ही नहीं, और जो मिलती भी तो महंगी मिलती है। ठीक है, कोई 200 देता है, कोई 220 देता है, तो इस तरह से हालात ख़राब है। मतलब बेसिक चीज़ है चीनी, हालांकि हर बंदा हर घर में इस्तेमाल करता है और डेली बेसिस पे वो अवेलेबल नहीं है और इतनी महंगी दे रहे हैं। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ। बहरहाल मिल नहीं रही वक्त तौर वजन मिले जिस रेट पे हम जिस रेट पे मिलेगी हम बेच रहे हैं, पल्ले से भी पाल कर डेलेंगे हम अपनी इज्जत बचाने के लिए, जितने की भी होगी ला कर बेचेंगे 173 में। शहर में बाज दुकानदारों ने इंतजामिया के छापों के खौफ से चीनी की फरोख्त ही बंद कर दी है। बैरून मुल्क से 1 लाख मैट्रिक टन चीनी मंगवाने का मामला और गैर मुल्की कंपनीज ने चीनी दरामद करने के लिए बोली जमा करवाई है। दरामदी चीनी पाकिस्तानियों को 227 रुपए फी किलो खरीदनी पड़ सकती है। बोली लंदन की कंपनी ने 539, स्विट्जरलैंड की कंपनी ने चीनी के दरामद के लिए $567 फी टन की बोली जमा कराई। मुत्तहिदा अरब इमारात की कंपनी ने दरामदी चीनी का रेट $599 हुकूमत को दिया है। दरामदी चीनी पाकिस्तानियों को कम अज कम 227 रुपए फी किलो में पड़ेगी। जमा कराई गई बोलियों पर ट्रेडिंग कारपोरेशन 1 से 2 रोज में फैसला करेगी। बोली मंजूर होने की सूरत में चीनी 2 माह के अंदर पाकिस्तान पहुँच जाएगी। दूसरी तरफ शुगर डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि मार्केट में चीनी की सप्लाई आटे में नमक के बराबर है। लाहौर की मार्केटों में योमिया 1500 की बजाय सिर्फ 50 टन चीनी आ रही है। कैन कमिश्नर का कहना है कि गुज़िश्ता 2 रोज में सूबे भर में 1,97,000 मैट्रिक टन चीनी फराहम की गई। ताहम मार्केट में चीनी की सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकी। कई इलाकों में चीनी की ब्लैक मार्केटिंग जारी। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर एहसान भट्टा का इजलास में कहना था कि शुगर मिल से मार्केट तक चीनी की फराहमी में दरपेश मसाइल को फौरी हल किया जाए। मसनूई महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चीनी की फरोख्त में मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान चीनी की कीमतों में मुनाफाखोरी पर 986 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। तफसीलात के मुताबिक तर्जुमान प्राइस कंट्रोल ने कहा है कि पंजाब भर में 73 अफराद गिरफ्तार, 22 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए हैं, जबकि 913 अफराद को जुर्माने किए गए हैं। लाहौर डिवीजन में 162 गिरफ्त फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ, 5 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। इसी तरह गुजरांवाला डिवीजन में 317 और फैसलाबाद में 129 दुकानदारों के खिलाफ चीनी के निर्खों की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ की गई हैं। चीनी की कीमतों में मसनूई इजाफे और किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया गया है। पेट्रोल सस्ता और डीजल महंगा करने का मिक्स पैकेज, अशिया की बढ़ाई की कीमतों में रिलीफ मिलेगा या नहीं, अवाम मकसूमे में पड़ गए हैं। डीजल की कीमत का जवाब बनाकर किराए मज़ीद बढ़ाए जाने का खदशा है। पेट्रोल की कीमतों में कमी और डीजल महंगा करने का मिक्स हुकूमती पैकेज, अशिया की बढ़ाई गई कीमतों में रिलीफ मिलेगा या नहीं, आवाम मकसमे में पड़ गई। लाहौर समेत पंजाब भर में बेशतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट डीजल पर चलती हैं और डीजल महंगा करने से किरायों में मजीद इजाफे का अंदेशा है। पेट्रोल सस्ता होने से टैक्सी, मोटरसाइकिल रिक्शा और ऑटो रिक्शा के किराए कहते हैं कि जब तक डीजल की कीमत में नुमाया कमी नहीं आती, किरायों में कमी की तवक्को रखना बेसूद है। आम आदमी आज भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इजाफी किरायों का बोझ उठाने पर मजबूर है, जबकि पेट्रोल की कीमत में कमी उसके लिए महज कागज रिलीफ साबित हो रही है। छुट्टी के रोज शहर लाहौर के बासियों ने पंजाब सहूलत बाजार वहदत कॉलोनी का रुख कर लिया है। सहूलत बाजारों में अशिया खुरनोश 10 से 20% डिस्काउंट पर दस्तियाब हैं। अवाम कहते हैं मॉडल बाजारों में अशिया खुरनोश की मियारी और सस्ती सहूलत भी मिल रही है। हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट देखिए। वहदत कॉलोनी सहूलत बाजार में शहरियान लाहौर का रश नजर आया। शहरी बड़ी तादाद में सस्ती अशिया खुरनोश की खरीदारी करने सहूलत बाजार पहुँचे। आने वाले शहरियों में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद रही। मॉडल बाजार में अशिया खुरनोश 10 से 20% डिस्काउंट पर दस्तयाब होती हैं। अवाम कहते हैं सहूलत बाजारों में अशिया मेयारी और सस्ती मिल रही हैं। मार्केट और यहाँ के नर्ख में खासा फर्क होता है। बाहर से इधर ना रेट अच्छे मिलते हैं, बाहर की निस्बत काफ़ी बेहतर है। जहाँ हमें बाहर 200-250 की 300 की चीज़ मिल रही है, यहाँ हमें मुनासिब रेट पे मिलती है और
वैसे भी साफ़ सुथरी चीज़ मिलती है। बाहर गोभी 300 रुपये किलो है, 400 रुपये किलो है। यहाँ मुनासिब, हर चीज़ का रेट मुनासिब होता है। अच्छा रेट है यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क है। प्याज, आलू, गोभी, बहुत फ़र्क है। प्याज बाहर जो है बाज़ार में 80 रुपये किलो है, यहाँ पे 40-50 और 38 भी है रेट। मुख्तलिफ रेट है, जैसी चीज़ है वैसा रेट लगाया होगा। अच्छा जो है ना उन्होंने सिस्टम किया हुआ है। अवाम का मजीद कहना है कि सहूलत बाजारों में चीज़ों का मयार भी बाहर की मंडियों से अच्छा है। कैमरामैन उमैर रईस के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। और रावे के कलियार रोड टूट फूट का शिकार है। सीवरेज लाइन डलने के बाद सड़क न बन सकी। सड़क टूट फूट का शिकार होने से कई हादसा भी हो चुके हैं। अहले इलाका ने आला हुकाम से मसला जल्द अज जल्द हल करने का मुतालबा किया है। और की कई गलियां हुकूमती तवज्जो की मुंतज़िर। लाहौर गुलशन रावी की कलियार रोड भी इन्हीं गलियों में से एक गली जो जगह जगह से टूट फूट और ज़ुबू हाली का शिकार है। आधे किलोमीटर से ज़ायद सड़क पर सीवरेज लाइन बिछाकर छोड़ दिया गया। मुतल्लिका महकमे सड़क बनाना ही भूल गए। इलाका मकीनों का कहना था कि टूटी सड़क के बाइस कई मरतबा हादसात हो चुके। मोटरसाइकिल से फैमिलीज गिर जाती हैं। महकमे को कई बार शिकायत की लेकिन कोई नहीं सुनता। 7-8 महीने हो गए ने जी, ये वेखने पे बड़ा बुरा हाल है। लोग बहुत परेशान ने। जो बारिश होती इतने नहर बन जाती है, लोग लंघिया नहीं जाता। 6 मोटरसाइकिलें इधर गिरती हैं। ये जो हमने पत्थर डलवाया ये सारा ये खुद फेंका इधर। 7 महीने से ये हालात है, कारोबार के ये हालात चल रहे हैं, कारोबार है कोई नहीं। गुलशन रावी की कलियार सड़क पिछले 7 माह से हुकूमती तवज्जो की मुंतज़िर है। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज़। शहर में स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ अहम इक़दाम जारी हैं, जबकि ग्रीन कॉरिडोर मंसूबा शुरू करने का फैसला किया गया। शादरा से रायबंद तक 40 किलोमीटर तवील ग्रीन कॉरिडोर तामीर होगा। लाहौर की रेलवे लाइन के साथ साथ शादरा से लेकर रायवंड तक 40 किलोमीटर तवील ग्रीन कॉरिडोर तामीर किया जाएगा। 700 केनाल पर मुश्तमिल इस मंसूबे के तहत रेलवे ट्रैक से मुल्हिका इलाकों को सरसब्ज़ व शादाब ग्रीन बेल्ट्स में तब्दील किया जाएगा। मंसूबा पाकिस्तान रेलवे और PHA के इश्तराक से मुकम्मल किया जाएगा। पुरानी रेलवे बोगियों को जदीद अंदाज में लाइब्रेरियों और कैफे में तब्दील किया जाएगा। ग्रीन कॉरिडोर मंसूबे का तखमीना लागत 2.3 अरब रुपए रखी गई है। मंसूबा 1 साल में मुकम्मल किया जाएगा। महकमा हाउसिंग पंजाब की जानिब से मंसूबे का PC1 महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को भिजवा दिया गया है। मंसूबे को 4 पैकेजेस में तकसीम किया गया है। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन वेंगल के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर लाहौर में ग्रीन एरियाज को वसअत दी जा रही है। आलूदगी फैलाने वाले हो जाए तैयार, जो आलूदगी फैलाएगा जुर्माना भरेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पे पोलियो रूल्स को माहौलियाती कानून का हिस्सा बना दिया है। आलूदगी फैलाने वालों से निपटने के लिए कानून बनाने वाला पंजाब पहला सूबा बन गया है। 10 जोन्स में आलूदगी पर खुदकार जदीद निज़ाम खबरदार का अलर्ट जारी करेगा। EPA फोर्स फौरी कार्रवाई करेगी। 10 जोन्स के लिए जोनल इंचार्ज और इंस्पेक्टर्स तैनात। मॉनिटरिंग स्क्वाड ने फील्ड में काम शुरू कर दिया। पाकिस्तान में पंजाब पहला सूबा है जिसमें हर शोबे की निगरानी के लिए अलग अलग दस्ते तश्कील दिए गए हैं। जदीद निज़ाम सनतों की चिमनियों, भट्टों और गाड़ियों से निकलने वाले जहरीले धुएं को टेक्नोलॉजी से जांचेगा। सनतों को जहरीला मवाद पानी में बहाने, कूड़े को आग लगाने, प्लास्टिक जलाने पर भी कार्रवाई करेगा। हर जोन में जदीद ड्रोन कैमरे, खुसूसी गाड़ियां और फौरी रिस्पांस टेक्नोलॉजी भी फराहम कर दी गई। 25 करोड़ रुपए की लागत से EPA फोर्स हेडक्वार्टर्स बनाने की मंजूरी भी प्रोग्राम में शामिल है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि पंजाब की पहली डिजिटल क्लाइमेट मूवमेंट का आगाज कर दिया गया है। ब्राज़ील में माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में पंजाब की नुमाइंदगी मरियम नवाज की काविशों का एतराफ़ है। कैमरा टीम के हमरा अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। शहर में तजावुज़ात से निजात हासिल करने वाली शाहराहों की वसअत हैरान कुन मंजर पेश करने लगी है। मुतअद्दिद मार्केटों से भी तजावुज़ात के खात्मे का अमल मुकम्मल कर लिया गया है, तो मुतअद्दिद बड़ी मार्केटें अभी भी हुकाम की नज़र तफ़ात की मुंतज़िर हैं। सुहेल कैसे की रिपोर्ट देखिए।
मुल्क के दूसरे बड़े शहर लाहौर में तजावज़ात का मसला जिस नहज पर पहुंच चुका था उसके पेश नज़र कुछ यूं महसूस होने लगा था जैसे शायद अब ये मसला कभी हल नहीं होगा। अनारकली, इचरा, बागबानपुरा, इस्लामपुरा, सदर बाजार, नौलखा चौक, मॉल रोड, GT रोड, केनाल रोड, लिटन रोड, गर्ज ये कि शहर की कोई भी मार्केट या शाहरा तजावज़ात से पाक नजर नहीं आती थी। अब अलबत्ता सूरत हाल में काफ़ी तब्दीली दिखाई दे रही है कि तजावज़ात के खात्मे के लिए बड़े पैमाने पर शुरू की जाने वाली कोशिशों के अच्छे नताइज बरामद हो रहे हैं। इस सूरत हाल में पैरा फोर्स के क़याम के बाद से मज़ीद बेहतरी आई है। मार्केटों में भी ऐसे जो लोगों ने आगे अपने थड़े बढ़ाए हुए हैं, गाड़ियाँ आगे खड़ी की हुई हैं, इनके खिलाफ भी जो है होना चाहिए। ये रिजल्ट तो बहुत अच्छा निकला है। आगे जो गवर्नमेंट कर रही है वो आवाम की सहूलत के लिए कर रही है, तो बिल्कुल सही हो रहा है। देखिए, अगर सहूलत आने जाने की होगी तो गाहक भी आएगा, सबको पता चलेगा यह मार्केट अब खुली है, मार्केट सही है। इस सूरत हाल का दूसरा पहलू ये भी है कि शहर की मुतअद्दिद बड़ी मार्केटों में अभी तक इंसदाद तजावज़ात मुहिम का आगाज नहीं किया जा सका और ऐसा पहली मरतबा नहीं हो रहा कि बड़ी मार्केटों में किसी भी हवाले से कार्रवाई करना इंतजामिया के लिए हमेशा ही एक मुश्किल अमल रहा है, अगरचे हुक्काम इससे इत्तफाक नहीं करते। और इस हवाले से अब पैरा फोर्स भी हमारी जो है वो एंटी इंक्रोचमेंट के साथ MCL की टीम्स के साथ और रेसिस के साथ फैसिलिटेट कर रही है। अगर आप देखें हमारी रावी तहसील में फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट्स में हमारा एक पहले एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन हुआ था, वो उसे सस्टेन कर रहे हैं। इस तरह हमारी इचरा मार्केट है, जीवन मार्केट है, लिबर्टी मार्केट है, तो वो तमाम मेन मार्केट्स जहाँ पे इंक्रोचमेंट होती थी वहाँ पे हमने क्लीनेस भी करवाई और अब हम सस्टेनेबल